Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, fractions. Fractions are essential concept of mathematics. We come across their applications in our daily life. देखिए जो फ्रैक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का. डेली लाइफ में हमें फ्रैक्शन से हमारा पाला पड़ता ही रहता है. जैसे कि हाफ कप ऑफ टी, 1/4 of a kilometer, half dozen of bananas, 2.5 meters of a cloth, etc. are some examples of fractions. In the previous class, we have read about fractions, addition and subtraction of fractions, etc. Let's have a look on the concept of fraction we studied in the previous class. अभी आपने जो previous class में पढ़ के आए हैं उसके बारे में एक बार थोड़ा सा quick revision कर लेते हैं. Fraction. A fraction is a number that expresses part of a group. Fractions are written in the form of a by b, where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. The number a is called the numerator and the number b is called the denominator. देखिए आपके पास अगर a और b नंबर हैं, ये आपके a जो आपकी लाइन से ऊपर है न्यूमरेटर एंड जो नीचे है दैट इज डिनोमिनेटर. ठीक है. फॉर एग्जांपल्स ये देखिए सारे ही आपके फ्रैक्शंस में, क्योंकि ये एक बार है, बार से ऊपर एक नंबर है, बार के नीचे एक नंबर है. Types of fractions. First है decimal fraction. Fractions having denominators as 100, 10. Types of fractions. Decimal fractions. Fractions having denominators as 10, 100, 1000 and any other higher power of 10 are called decimal fractions. आपके decimal fractions जिनके denominator हो 10, 100, 1000, 10,000, ये सारी आपके decimal fractions होते हैं. For example, vulgar fraction. अब ये vulgar fraction क्या है? Fractions having denominators as whole numbers other than any power of 10 are called vulgar fractions. Vulgar fractions are also called common or simple fraction. देखिए फ्रैक्शन जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं होल नंबर होने चाहिए बट अदर देन एनी पावर ऑफ 10, तो उन्हें हम कहते हैं वल्गर या फिर सिंपल फ्रैक्शंस. जैसे कि ये सारी आपके वल्गर फ्रैक्शंस हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर्स लेस देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होते हैं वो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग न्यूमरेटर्स ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स उनके न्यूमरेटर से बड़े होते हैं वो आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. Next is mixed fraction. Improper fractions which are written as the combination of whole numbers and proper fractions are called mixed fractions. Mixed fraction आपका actually combination होता है एक whole number का और एक fraction का, जैसे कि आपके ये सारे हैं. Next is, अब next क्या है आपका, देखिए conversion of an improper fraction into a mixed fraction. आप improper fraction को mixed में कैसे convert करेंगे? To convert an improper fraction into mixed fraction, we follow the given steps. Divide the numerator by denominator and find the numerator. Write the quotient, remainder and divisor in the form of quotient, remainder upon divisor. ये जो steps हैं हम एक example के through करते हैं. 38 divided by 7. 38 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 is 35. ओके. 3 इज द रिमाइंडर. सबसे पहले जो क्वोशंट है, क्वोशंट देन रिमाइंडर ऊपर एंड आपका जो डिवाइजर है नीचे, यानी कि 5 3/7. कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करें? टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी फॉलो द गिवन स्टेप्स. सबसे पहले फॉर न्यूमरेटर, find the product of divisor and the quotient and add the remainder to the product. Step 2, the denominator remains the same as the divisor. चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं. आपके पास है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन 21 3/19. आप सबसे पहले क्या करेंगे? 21 3/19. आप सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूमरेटर के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें आप 3 को प्लस करेंगे एंड डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा. सो 21 into 19 प्लस 3/19. डिनोमिनेटर आपका हमेशा, तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 399 प्लस 3, जो कि आपका हो जाएगा 402/19. तो ये आपका क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Fractions having the same value are called equivalent fractions. These fractions can be found by multiplying or dividing the numerator and denominator of a fraction by the same non-zero number. आपकी equivalent fractions वो fractions होते हैं जिनकी value same होती है. तो आप numerator और denominator को या तो multiply करेंगे या फिर divide करेंगे same number से. For example, आपके पास एक fraction है 2/3. Okay? अब 2/3 को आप क्या करेंगे? आप देखिए 2/3 है, आप multiply करेंगे 2 से, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपका जाएगा 4/6. इसी तरह से आप 2 से इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो आपका आ जाएगा 6/9. यानी कि आपका 2/3
इज इक्वल्स टू 4/6 इज इक्वल्स टू 6/9। ये सारे ही आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई किया आप डिवाइड भी कर सकते हैं। Like fractions, fractions having the same denominator but different numerators are called the like fractions. जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर तो सेम होते हैं बट न्यूमरेटर अलग होते हैं उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। एंड जिन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू द लाइक फ्रैक्शंस वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब अनलाइक फ्रैक्शन को आपको लाइक में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के जरिए हम किस तरह से अनइक्वल फ्रैक्शन को या अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपके पास है 3/4, 7/8 एंड 5/12। आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका जो है 4, 8 एंड 12 का आएगा 24। अब आपको क्या करना है? एलसीएम 24 आ गया है तो अब आपको डिनोमिनेटर 24 करना है। 3/4, 24 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी 6 से, तो आपका हो जाएगा 18/24। इसी तरह से आपका 7/8 है, डिनोमिनेटर 24 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से, 21/24। एंड इसी तरह से आपका 5/12 है, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी, तो 10/24। अब देखिए हो गए सबके डिनोमिनेटर सेम, यानी कि अब हमने क्या कर दिया है? अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग वन एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। जिन फ्रैक्शंस के आपके न्यूमरेटर 1 है सभी के, उन्हें बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी लोएस्ट फॉर्म। इट्स numerator and denominator have one as HCF. For converting a fraction into its lowest form, we divide numerator and denominator by their HCF. Lowest form of fraction क्या होता है? यानी कि जो numerator और denominator का HCF है वो 1 हो, और आप convert करना है अगर उसको lowest form में तो आप कैसे करेंगे? हम numerator और denominator को divide करेंगे उनके HCF से। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। देखो, if 12/16 is to be converted into its lowest form, then divide the numerator and denominator by the HCF of 12 and 16, that is 4। देखिए 12/16 है आपके पास एक फ्रैक्शन आपको दिया है 12/16। चाहे तो आप इससे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। अदरवाइज आप क्या करेंगे? 12 and 16 का आप HCF लेंगे। तो चलिए HCF लेते हैं। 12 1 से 12, 4 12, 4 3 जा 12। तो HCF आपका कितना आया? 4 है ना, और हमने 4 से ही डिवाइड करना है। तो कई बार बहुत बड़े नंबर्स आ जाते हैं जो आपको पता नहीं चलेंगे कि किससे हमें डिवाइड करना है, तो आप इस केस में HCF लेंगे एंड देन आपको पता चल जाएगा किससे डिवाइड करना है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो जिसका सेम न्यूमरेटर है तो क्या करेंगे? इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शंस टू बी कंपेयर आर सेम, देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर। अगर न्यूमरेटर सभी फ्रैक्शंस का सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आपका बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको ये सारे फ्रैक्शंस दे रखे हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10 है, बट ऐसा नहीं है। सारे ही न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, कम है, वो सबसे बड़ा होगा, राइट? Fractions with same denominator. If the denominator of fractions to be compared are same, then the fraction with greater numerator will be greater. अगर आपके सारे ही denominator same है तो जिसका numerator सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा। Fractions with unequal denominators and unequal numerator. अच्छा, अभी तो हमने बात की कि सेम न्यूमरेटर है या सेम डिनोमिनेटर है, बट अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अनइक्वल हो तो क्या करेंगे? देखिए, These types of fractions can be compared by 2 ways. हम इन्हें 2 ways कर सकते हैं। कैसे? By converting them into like fractions. सबसे पहले आप उसे like fraction में convert कर दें। For example, if we have to compare 4/7 and 3/8, then first we convert the given fraction into like fractions. देखिए, आप कैसे करेंगे like fraction में? आपके पास है 4/7 and आपके पास है 3/8। ओके, देखिए LCM ले लीजिए सबसे पहले। LCM of 7 and 8 56 आएगा। 4/7
डिनोमिनेटर 56 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 से 32/56, 3/8, यहाँ 7 से करेंगे तो यहाँ भी 7 से 21/56। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है? दिस वन। और ये किससे बना है? 4/7 से। दैट मीन्स 4/7 इज ग्रेटर देन 3/8। नेक्स्ट मैथड है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू कंपेयर 4/9 एंड 3/5 देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे कर सकते हैं हम? देखिए, आपके पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 4 को आप 5 से करेंगे, 9 को आप 3 से करेंगे। तो 4 को आपने 5 से किया 20 आया, एंड 3 को आपने 9 से किया तो 27 आया। तो 27 ग्रेटर है, यानी कि आपका ये जो राइट साइड है वो फ्रैक्शन आपका बड़ा है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर टू अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑब्जर्व द गिवन एग्जांपल। देखिए, आपको एग्जांपल दिया गया है और इसमें देखिए ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे हम? इनका एलसीएम लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके पास फ्रैक्शन है 2/9, 3/4, 5/2 एंड यू हैव 1/4। चलिए, तो एलसीएम लेंगे हम 9, 4, 2 एंड 4 का, तो आपका एलसीएम आएगा 36। अब डिनोमिनेटर हमको 36 करना है, 9 × 4 और यहाँ पे भी 4, तो आपका हो जाएगा 8/36, 3/4, यहाँ 36 करने के लिए 9 से करेंगे तो यहाँ भी 9 से 27/36। नेक्स्ट इज 5/2, 36 करने के लिए 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 18 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो आएगा आपका 36 एंड 90। 1/4, यहाँ 36 करने के लिए 9 से, यहाँ भी 9 से, 9/36। अब आप देखिए सारे ही आपके लाइक फ्रैक्शंस में होंगे, है ना। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे छोटा आपका कौन सा है? 8/36, देन 9/36, देन 27/36 एंड 90/36। अब देखिए 8/36 आपका कौन से फ्रैक्शन से बना? 2/9। 9/36 का फ्रैक्शन था 1/4, 27/36 यानी 3/4 एंड 90/36 यानी कि 5/2। सो इसी तरह से आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ऐसे ही करना है, बड़े से छोटा रखना है, राइट। सो दिस आपने, लेकिन देखिए जब आपने ये एलसीएम निकाल के किया उसके बाद आपको जो ओरिजिनल जो फ्रैक्शंस थे आपने ऐसे उन्हीं में रखना है। ओके चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। टू ऐड 2 और मोर फ्रैक्शंस वी फॉलो द गिवन रूल्स। फॉर एडिंग 2 और मोर लाइक फ्रैक्शंस द न्यूमरेटर्स आर एडेड एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। देखिए अगर आपके लाइक फ्रैक्शंस है तो क्या होगा? सिर्फ न्यूमरेटर को हम प्लस करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। रूल नंबर 2, फॉर एडिंग 2 और मोर अनलाइक फ्रैक्शंस फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस देन ऐड यूजिंग रूल 1। देखिए अगर आपके अनलाइक फ्रैक्शंस हैं जैसे कि इसमें, तो आप क्या करेंगे? पहले उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? एलसीएम लेके, जैसे आपको बताया था, और उसके बाद फिर आपने एज यूजुअली उसे ऐड करना है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन इज कम्यूटेटिव। फॉर एग्जाम्पल 1/7 + 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5 + 1/7। जो एडिशन होता है फ्रैक्शन का वो आपका कम्यूटेटिव है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इज एसोसिएटिव। अब फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव भी है, राइट। Subtraction of fractions. To subtract 2 fractions, we follow the given rules. Rule 1, for subtracting 2 like fractions, the numerators are subtracted and denominator remains the same. जब आप like fraction को minus कर रहे हैं तो सिर्फ numerator minus होंगे, denominator will remain same. Rule number 2, for subtracting 2 unlike fractions, first convert them into like fractions and subtract using rule 1. और अगर आपकी unlike fraction है तो आपको देखिए जब भी आपकी unlike fraction का आपको add करना है या फिर आपको subtract करना है, सबसे पहले उसे like fraction में convert करना है, और जब वो like fraction में convert हो जाएंगे then आपको minus करना है numerators को and denominator will be same. चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले which of the following pairs are like fraction? like fraction कौन से हैं? ये, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम है। इसके बाद आपका कौन सा है? ये, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 1 3/4 आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा प्लस करेंगे। 1 4 + 4 + 3
4 + 3 और डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहने वाला है 7/4। इसी तरह से देखिए ये आपका हो जाएगा 7 × 13 + 9/13। ओके, 13 7 = 91 + 9/13, आपका 91 + 9 100/13। ओके चिल्ड्रन, बाकी आपके सेम है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कल द ग्रेटेस्ट एंड टेक द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो सबसे बड़ा है उसे आपको क्या करना है, सर्कल करना है, और जो सबसे छोटा है उसे क्या करना है, टिक करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है, आप उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके चिल्ड्रन, multiplication of fractions, multiplication of a fraction by a whole number. As we know the multiplication is repetitive addition. Then आपको पता है multiplication repetitive addition होता है। तो देखिए जैसे आपको दिया गया है this one, 4 में से आपका एक पार्ट शेडेड है, देन दूसरा पार्ट शेड कर दिया बट एक ही पार्ट शेड है, ठीक है। कंसिडर द अबव फिगर्स, ईच शेडेड पार्ट ऑफ फिगर्स A, B and C represent 1/4 पार्ट। इफ वी कंबाइन द 3 शेडेड पार्ट्स टुगेदर, देन देखिए ये तीनों पार्ट्स 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसे प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 है ना, 3/4 आया है। और आप क्या करेंगे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 और 3 पार्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/4, जो कि आपका ये डी पार्ट दिखा रहा है। ओके, सो द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर कम्स आउट टू बी फ्रैक्शन इनटू होल नंबर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इनटू होल नंबर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। चलिए इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू जानते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, आपके पास है 2/14 बाय 7, ओके, 2/14 बाय यानी मल्टीप्लाई 7। आप चाहें तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर 1 करने के लिए। तो आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 7s = 14 एंड नीचे आपका आ जाएगा 14, एंड दोनों ही आपके 1 आ जाएंगे जब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो fraction as an operator of, observe the figure A, each shaded portion of the 2 circles represent 1/4 of 1. So both the shaded portions together will represent 1/4 of 2. देखिए ये दो आपके पार्ट, ये देखिए A में क्या है आपका shaded portion क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 एंड दिस वन इज 1/4, यानी कि अगर हम दोनों ही शेडेड पार्ट को ज्वाइन कर दें टुगेदर तो फिर क्या होगा, ये आपका बन गया दिस पार्ट। So on combining two shaded 1/4 parts, it represent 1/2. यानी कि हमने जब दो 1/4 and 1/4 पार्ट को रिप्रेजेंट ज्वाइन कर दिया टुगेदर तो वो क्या बना आपका 1/2। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1/4 into 2, तो ये आपका कट होके आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/4 of 2 is equals to half. Similarly, each shaded portion of circles given in figure B represents 1/2 of 1. So the 3 shaded portion represents 1/2 of 3. On combining 3 shaded 1/2 parts, it represents 1/2 or 3/2. Similarly, इसमें भी आपका ऐसे ही होगा। Next is multiplication of fraction by another fraction. जब आपको एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, अभी तक तो हमने एक फ्रैक्शन को होल नंबर से किया था। Consider an example 1/2 into 1/4 to understand the multiplication of two fractions. Since 1/2 into 1/4 can be written as 1/2 of 1/4, so first we find 1/4 of a whole. 1/4 of a whole is obtained on dividing whole into 4 equal parts. Each part represents 1/4, that is shown in given figure. देखिए आपको कंसिडर करने ये दो फ्रैक्शन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका 1/2 है ऑफ 1/4। तो सबसे पहले हमने ये एक फिगर हमने ऑब्टेन की, this is 1/4. Now to find half of 1/4 यानी 1/2, half of 1/4 we divide 1/4 into 2 equal halves. Dark shaded part shown in given figure represents 1/2 of 1/4 is equals to 1 into 1/2/4. देखिए अब आपका क्या है कि जब आपको फाइंड करना है 1/2 of 1/4 तो हम 1/4 को 2 इक्वल हाफ से डिवाइड करेंगे, तो ये जो डार्क शेडेड पार्ट जो आपका आ रहा है एक्चुअली ये क्या है आपका, उसको शो कर रहा है, फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ फ्रॉम द गिवन फिगर वी फाइंड दैट 1/2 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अब इस फिगर को देखिए, ये जो नेक्स्ट फिगर आई है इससे हमें पता चलता है कि 1/2 ऑफ 1/4 आपका है 1/8। हेंस फ्रॉम हियर वी कैन डिराइव अ रूल दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शंस। तो यहाँ से आपका एक रूल आता है, दो फ्रैक्शंस
को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं, जैसे 1/4 इंटू 2/3, 1 into 2 अपॉन 4 into 3, 2 1s are 2 and 4 3s are 12। इसी तरह से नेक्स्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, 2/4 को न्यूमरेटर्स 2 into 4 एंड आपके डिनोमिनेटर्स 5 into 7 आपके इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए ये आपका है, देखिए 2/5 प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 4/5, और आप इसे क्या लिख सकते हैं, डैश ऑफ 2/5 4/5 ऑफ 2/5, यानी कि 4 2s are 8 एंड 5 5s are 25। ओके चिल्ड्रन, बाकी के पार्ट्स आपको ऐसे ही करने हैं, तो बहुत इजी आप कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड 30 ऑफ 5 1/5। देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 5s are 25 प्लस 1 26/5। आप इसे कट कर देंगे 5 6 और अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 are 36, 3 कैरी, 6 2s are 12 प्लस 3 15। इसी तरह से 5/6 ऑफ अ लीप ईयर, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं आपके, 366, तो 6 से कट करेंगे, 6 and 6 1s, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 305। इसी तरह से 305 डेज, डोंट फॉरगेट टू राइट डेज। इसी तरह से देखिए ई पार्ट देखते हैं, 3/7 ऑफ अ वीक, 3/7 ऑफ अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, 7 7 गोज, आपका आ जाएगा 3 डेज। ओके चिल्ड्रन, अब आपको ये सारे सेम है, ये ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डायग्रामेटिकली। 3 ऑफ 1/4 ये आपको डायग्रामेटिकली शो करना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया था। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। Reciprocal of a fraction, 2 fractions are said to be reciprocal of each other if their product is 1। देखिए 2 fractions को हम reciprocal में तब कहेंगे जब उनका जो product है वो 1 आए, जैसे कि 2/9 और 9/2, ये reciprocal है, ठीक है। reciprocal का मतलब होता है जैसे उसका उल्टा, 2/9 का reciprocal होगा 9/2, यानी कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर विल बी 1। ओके, in general if a by b is a non-zero fraction then its reciprocal will be b by a, यानी कि कोई किसी भी नंबर को आप उल्टा कर देंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो आपका रेसिप्रोकल होगा। रिमेंबर दैट रेसिप्रोकल ऑफ ए जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, डिवीजन इज रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स how many times one number we can found in a second number। Consider an example, how much is 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, डिवीजन आपका मल्टीप्लिकेशन का जस्ट इनवर्स होता है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे करते हैं। हियर वी कैन सी दैट गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स 1/4 ऑफ ए होल। देखिए ये 1/4 ऑफ होल क्या कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वी डिवाइड 1/4 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन द गिवन फिगर। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1/4 को 2 इक्वल हाफ्स में या 2 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, यानी कि आपके पहले ये 4 बॉक्सेस थे, अब आपने इसे कर दिए उसको हाफ पार्ट्स में, क्योंकि आपको डिवाइड करना है। डार्क शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स 1/4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो डार्क पार्ट है आपका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपका हो जाएगा 1/8 एज शोन इन द गिवन फिगर। Here we can say that fraction divided by whole number is equals to fraction into 1 by whole number। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3/2 डिवाइडेड बाई 9, 3/2 डिवाइडेड बाई 9। सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/9। सो 3 इंटू 1, 2 इंटू 9, आप इसे 3 से कट कर सकते हैं, 3। सो 1/6 इज द आंसर। जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आप हमेशा जो राइट साइड में नंबर है उसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अभी हमने होल नंबर और फ्रैक्शन का डिवीजन किया था, अब हम फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से डिवीजन करेंगे। डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन, दैट इज a by b डिवाइडेड बाय c by d इज इक्वल्स टू a by b इनटू d by c। चलिए इसे हम जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 5/6 डिवाइडेड बाय 5/2। आपको क्या करना है, आपके जो राइट साइड में फ्रैक्शन है उसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है। ओके, ये आपका कट जाएगा, 2 1s are
2 3 सो आपका आंसर आएगा 1/3. Some important points to divide a whole number by a mixed fraction. First, convert the mixed fraction into improper fraction and then divide. अगर आप whole number को divide करें किसी mixed fraction से, सबसे पहले आप उसे improper में change करेंगे and उसके बाद divide करेंगे. To divide a mixed fraction by a proper fraction or a whole number, first convert the mixed fraction into improper fraction and then divide. अगर आप किसी मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं किसी प्रॉपर फ्रैक्शन से या होल नंबर से, तो सबसे पहले आपका जो मिक्स फ्रैक्शन में है आप उससे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ ईच वन. 55 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/55. 5/8 का हो जाएगा 8/5. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई. 9 डिवाइडेड बाय 1/3. 9 ऐसे ही रहेगा और आपका ये हो जाएगा 3/1, तो ये हो जाएगा 27. रेसिप्रोकल हमें करना है, राइट. इसी तरह से 5 डिवाइडेड 25/6, 26. 5 इंटू 26/25. 5 5 26/5. अब आप ये देखिए ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसे मिक्स में कन्वर्ट करेंगे. 5 1/5. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिवाइड 9/16. चलिए इसे कैसे करेंगे. 9 को डिवाइड करना है 3/16 से, तो 9 इंटू आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. 3 3 9 48. ओके. चलिए एक और पार्ट देखते हैं. इसका 20 को डिवाइड करना है बाय 10/11. सो 20 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 11/10. 0 0 goes and your answer will be 22. Overview. A fraction is a number that expresses part of a group. आपका fraction वो number होता है जो एक group के part को express करता है. Fractions having denominators as whole number other than any power of 10 are called vulgar fractions. आपके vulgar fractions होते हैं जिनके denominators other than power of 10 होते हैं, यानी कि 10, 100, 1000 ये नहीं होते हैं. Improper fractions which are written as the combination of whole numbers and proper fractions are called mixed fractions. आपके mixed fractions क्या होते हैं, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं जिन्हें कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस के. फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर नोन एज लाइक फ्रैक्शन. जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं बट न्यूमरेटर डिफरेंट होते हैं वो आपके लाइक फ्रैक्शंस होते हैं. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. एंड जिन फ्रैक्शंस के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उन्हें अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव वन एज HCF. कोई भी फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में तब होता है जब उनका HCF यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 हो. Fraction into whole number is equals to numerator of the fraction into whole number by denominator of the fraction. Product of two fractions, product of numerator upon product of denominator. देखिए जब आप multiply करते हैं तो numerators को multiply करते हैं, then upon denominators को multiply करते हैं. Two fractions are said to be the reciprocal of each other if their product is 1. दो fractions को हम एक दूसरे को reciprocal तब कहते हैं जब उनका product 1 होता है. Fraction divided by whole number is equals to fraction into 1 by whole number. जब आप divide करेंगे ना whole number को तो उसका हम reciprocal कर देंगे, तो reciprocal obviously 1 होगा ऊपर 1 by whole number. चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. बाकी की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.